Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today, in part number 9 of chapter 2, dual effect of transaction and types of account, we are starting with example number 4. In last 8 video, we have discussed all the theoretical aspect as well as we have tried to solve all the illustration. So now it's a time for solution related with the exercise. Question 1, 2 and 3. All three questions are related with the theoretical aspects. So just watch the video, you are going to get the answer from that. But the sum like this, which we need to solve. Okay. So we are starting with question number 4. Okay. Now, what does it mean? Question 4. To which account the following transaction will be debited and credited in the books of Neelam? Describe the reason. मतलब इसमें क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस सम किया था इलास्ट्रेशन नंबर 10, तो इलास्ट्रेशन नंबर 10 में हमने क्या किया था, वी हैव ट्राइड टू सॉल्व कि डेबिट इफेक्ट क्या होगी, क्रेडिट इफेक्ट क्या होगी, और अगर डेबिट किया है तो डेबिट करने का रीज़न क्या था, और अगर क्रेडिट किया है तो क्रेडिट करने का रीज़न क्या था. ये चीज़ हमने देखी थी प्रीवियस सेशन में. सो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इतने कॉलम्स बना देने पड़ेंगे. फर्स्ट वन दैट इज सीरियल नंबर, सेकेंड इज ट्रांजेक्शन, थर्ड in debit effect there are three different one. First one that is benefit receiver person, second is goods or assets comes in, next one expenses or losses occur. In credit effect again there are three different accounts. One that is benefit giver person, second that is goods assets goes out, and third that means incomes gains receives. Okay, and the last one that is receive for the reason for the debiting and reason for the crediting. So what we are going to do, the whole example is written over here. There are 15 different transactions. We are going to see in this page the 8 and rest of in the next page. So starting with the first one, before that you need to remember the three golden rules of accounting. So what are they? First one that is personal account. So for personal account, debit the receiver and credit the giver. What is the rule? Debit the receiver and credit the giver. Now for real account, goods or asset debit what comes in, goods or assets credit what goes out. Clear? That is for real account. And third account that is nominal account, all the expenses and losses are debited, all the incomes and gains are credited. Okay, so what we need to do, just go through the transaction, see which kind of entry is that, and we have to put it in a required boxes, and finally we have to write down the reason for that. Clear? अब ऐसे हम सम पूरा सॉल्व करेंगे. Let's start with the first transaction. Number 1, ₹50,000 brought in cash and started a business. अब इसमें क्या बोला गया है, 50,000 रुपीज़ बिजनेस में लाए और बिजनेस स्टार्ट किया. चलो, तो सबसे पहले देखो तो बिजनेस में क्या आया, तो आपने क्या किया, यू हैव ब्रॉट कैश इनटू बिजनेस. ओके, अगर कैश बिजनेस में आ रही है तो वो आपकी असेट्स है. सो फर्स्ट वन दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन. क्लियर?
तो ये रियल अकाउंट के रिलेटेड एक पहला ट्रांजेक्शन आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहली कैश की एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रियल अकाउंट के रिलेटेड ट्रांजेक्शन था। नाउ एज यू नो वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, तो सेकेंड एंट्री कहां लगेगी? तो अगर आप बिजनेस में 50,000 रुपए ला के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज कंसीडर एज योर कैपिटल। उसे क्या कहा जाएगा? बिजनेस में आपने कैपिटल ब्रॉट की। ओके, तो कैपिटल वो किसकी होती है? इंडिविजुअल पर्सन की होती है। अगर पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बेनिफिट गिवर पर्सन, तो क्रेडिट द गिवर, तो इसमें क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये चीज पता चली आपको? क्लियर है? चलो, व्हाट इज द रीजन फॉर डेबिटिंग? एज कैश कम्स टू बिजनेस। ओके, अब क्रेडिटिंग मतलब क्रेडिटिंग में कैपिटल अकाउंट क्यों लिया? सो दिस कैश इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर। पता चला? सो ऐसे हम टोटल 15 एंट्री करेंगे। ओके, तो जिसमें कुछ नहीं आ रहा तो उसमें आप क्या कर दोगे? डैश लगा दोगे। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट एंट्री नंबर 2, अ लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फ्रॉम जसलीन। क्या किया है? 10,000 की रुपए की लोन ली है, किससे? जसलीन से। ओके, अब यहां पे देखो, अगर आप लोन लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, ये चीज समझो। अगर आपने लोन ली तो आपके पास कैश आएगा। सो कैश मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। अगर रियल अकाउंट है देन व्हाट रूल वी विल अप्लाई? डेबिट व्हाट कम्स इन। सो डेबिट, कैश इज कमिंग, सो कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ इतना? चलो, अब ये लोन किसने दी है? जसलीन ने दी है। तो अगेन नेम ऑफ द पर्सन इज देयर, तो यहां पे लिख देंगे जसलीन लोन अकाउंट क्रेडिट। पता चला इसमें? क्योंकि ये असेट्स नहीं है, वी हैव टू पे द अमाउंट टू जसलीन आफ्टरवर्ड्स। हमको जसलीन को ये पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 एंट्री हो गई, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं वाली, तो मैं क्या कर दूंगा? डैश कर दूंगा। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? रीजन क्या है? एज कैश कम्स टू बिजनेस। बिजनेस में कैश आई ना, नए पैसे आए, 10,000 रुपए आए, जसलीन ने दिए। ओके, नाउ why we have credited Jasleen's account? Because Jasleen is a giver of loan. उसने लोन दी है। तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है? बेनिफिट गिवर पर्सन। ओके, रूल क्या है? गिवर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, बैंक अकाउंट ओपन by depositing ₹30,000। अब हमने क्या किया? 30,000 रुपीज डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट स्टार्ट कर दिया। अगर आपका बैंक अकाउंट स्टार्ट हुआ है तो बैंक अकाउंट स्टार्ट होगा, वो कैसे स्टार्ट होगा? आपके नेम पे स्टार्ट होगा ना। तो अगर आपके नेम पे बैंक अकाउंट स्टार्ट हुआ है तो वो क्या आ जाएगा? फर्स्ट वन इट्स अ पर्सनल अकाउंट, पर पर्सनल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, यूनियन बैंक अकाउंट, इस सब में कौन से आ जाते थे? पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, सेम वे अब हमने जब ये
डिपॉजिट किया तो एक अकाउंट तो आपको मिल गया बैंक अकाउंट, पर ये डिपॉजिट किया दैट मीन्स कैश का ट्रांजेक्शन हुआ। तो कैश बिजनेस में से आई के गई तो बिजनेस में से कैश गई, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज कैश इज एन असेट्स फॉर द बिजनेस। ओके, और असेट्स कम हुई तो हम क्या करेंगे? कैश गोज आउट, कैश बाहर निकली ना, कैश गोज आउट हो जाएगा। नाउ what we are going to write over here, what is the reason for debiting? So bank account opened by depositing and cash deposited into bank. Clear? Okay, next one, number 4, a computer purchased of ₹8,000। क्या हुआ? 8,000 रुपीज़ का कंप्यूटर जो था वो नया परचेज किया। अगर आप परचेज करते हो तो फर्स्ट वन कंप्यूटर बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन एज कंप्यूटर इज एन असेट्स, तो हम क्या कहाँ पे लिखेंगे? असेट्स के अकाउंट में लिख देंगे। असेट्स अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो कंप्यूटर असेट्स है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द नेम कंप्यूटर इटसेल्फ। ओके, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे तो 2 एंट्री में से कुछ भी नहीं आएगा। अब क्रेडिट साइड पे क्या एंट्री आएगी? 8,000 रुपीज़ में परचेज किया है। अगर 8,000 रुपीज़ में परचेज किया है मतलब आपने पैसे कैसे दिए हैं? कैश में दिए हैं। सो इसमें क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, यहाँ पे दोनों पे डैश, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रीजन फॉर डेबिटिंग, अ न्यू कंप्यूटर परचेस्ड, कंप्यूटर परचेस्ड एंड कंप्यूटर परचेज्ड इन कैश। पता चला? नेक्स्ट वन, नंबर 5, स्टेशनरी परचेज्ड ऑफ ₹1,000। इसमें क्या किया है? हमने 1,000 रुपए की स्टेशनरी ली है। अब स्टेशनरी तो आपका क्या है? अगर आप बिजनेस करते हो तो डे टू डे ऑपरेशन में स्टेशनरी का यूटिलाइजेशन होने वाला है। सो स्टेशनरी इट्स अ रूटीन एक्सपेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे? ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। तो फर्स्ट वन, स्टेशनरी इट्स एन एक्सपेंस, सो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। 2, अब इसमें कुछ लिखा नहीं है तो ये कैश ट्रांजेक्शन कंसीडर करेंगे। हमने पैसे किस में दिए होंगे? कैश में। कैश अकाउंट क्रेडिट। पता चला? चलो, यहां पे डेबिट क्यों किया? स्टेशनरी एक्सपेंस पेड इन कैश, कैश पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस। ओके, आप फुल लिखना, जैसे मैंने मतलब EXP लिख दिया ऐसा मत करना, फुल लिखना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 6, परचेज्ड मेड ऑफ ₹20,000। अब इसमें क्या किया? 20,000 रुपीज़ का परचेज किया है। अगर आप परचेज करते हो तो बिजनेस में क्या आएगा? गुड्स आएगा। गुड्स आया तो वो कहाँ पे लिखा जाएगा? गुड्स एंड असेट्स। ओके, सो इसमें परचेज अकाउंट डेबिट। 2, एज द गुड्स इज परचेज, कैश और क्रेडिट कुछ नहीं लिखा तो हम क्या कंसीडर करेंगे? कैश ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट क्रेडिट। आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए। अगर रूल्स याद है तो आप आराम से ये सम सॉल्व कर सकोगे। ओके, सो परचेज मेड
ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 रुपये का परचेस किया, दैट्स वाई वी हैव डेबिटेड इनटू दिस अकाउंट. एज वेल एज यू कैन ऑल्सो राइट गुड्स कम इनटू बिजनेस, goods came. Okay, now cash is paid for purchase. Clear? Next one, entry number 7. Purchase is made of rupees 30,000 from Raman. हमने क्या किया, 30,000 का परचेज किया, अगेन परचेज ही किया है. तो परचेज किया है तो एक तो ये आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट. सेम जो ऊपर वाली एंट्री थी वही की वही एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट. पर इसमें देखो, इसमें क्या था, 20,000 रुपीज लिख दिया था, पर ऐसा नहीं लिखा था कि कैश ट्रांजैक्शन है या तो फिर क्रेडिट है. तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, अगर नेम ऑफ द पार्टी है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ द पार्टी है, हाँ है, देखो रमन लिखा हुआ है. अगर रमन लिखा हुआ है तो रमन तो क्या हो गया, पर्सन हो गया. क्लियर? तो रमन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एज इट्स अ पर्सनल अकाउंट. रमन अकाउंट क्रेडिट. यहां पे दो में क्या आ जाएगा, डैश. हियर गुड्स कम्स इनटू बिजनेस. Okay, and goods purchased from Raman on credit, as we have taken it on credit, that's why we have to write this thing. Next, number 8, goods of rupees 50,000 sold on cash for 28,000. अब हमने क्या किया, 15,000 का जो गुड्स था वो कितने में सोल्ड आउट कर दिया, 28,000 रुपीज में सोल्ड आउट कर दिया. तो अगर आपने 15 में किया, 50 में किया, 28 में किया, जितने भी रुपए में किया है, जितने में गया, वो ट्रांजैक्शन एंट्री यहाँ पे आएगी. क्लियर? सो गुड्स हैज सोल्ड, तो इसमें क्या एंट्री आएगी आप सोचो. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने गुड्स सेल किया है और इसमें क्लियरली लिखा है कैश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश कम्स इनटू बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस में आया. सेकेंड, गुड्स ऑफ रुपीज, गुड्स क्या हुआ, गुड्स गए, तो यहाँ पे आ जाएगा गुड्स अकाउंट. दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये सेल्स की एंट्री है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट. अब रूल यहां पे क्या आ जाएगा, कैश कम्स इनटू बिजनेस. ओके, एंड गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. क्लियर? तो ये आपकी एंट्री नंबर 1 से लेके एंट्री नंबर 8 तक के ट्रांजैक्शंस हो गए. ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, सो नाउ आई एम मूविंग इट. नेक्स्ट वन, goods of rupees 8,000 sold to नीला for rupees 15,000. हमने क्या किया है, एंट्री नंबर 9 में देखो, जो गुड्स थे 8,000 रुपीज के, हमने नीला को सोल्ड किए, कितने में किए, 15,000 रुपीज में सोल्ड कर दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आएगा, नीला, नेम ऑफ द पार्टी इज there, so that's why it's a personal account, नीला अकाउंट डेबिट. और हमने सोल्ड किया है, सोल्ड मतलब गुड्स गया बिजनेस में से. ओके, बिजनेस में से अगर आपका गुड्स जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? तो यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। अभी हम थोड़ा ये चीज़ को फास्ट करेंगे क्योंकि नहीं तो आपका टाइमिंग बहुत बढ़ जाएगा, 20 मिनट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, नंबर 9, सो व्हाट इज द रीजन फॉर डेबिटिंग? इसका रीजन क्या आएगा? नीला इज अ रिसीवर ऑफ गुड्स, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों आएगा? बिकॉज गुड्स गोज आउट। ओके, नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न टू रमन ऑफ ₹2000। अब हमने क्या किया, रमन से जो हमने गुड्स लिए थे वो हमने वापिस कर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द रिसीवर? रमन इज अ रिसीवर, तो आ जाएगा रमन अकाउंट। सेकेंड थिंग, गुड्स हैज रिटर्न, तो अगर हमने गुड्स रिटर्न किए हैं तो इसे क्या कंसीडर किया जाएगा? परचेज रिटर्न। हमने खरीदे थे और हमने ही वापिस किए, परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? अब देखो, इसकी डेबिट होने का रीजन क्या था? एज रमन इज अ रिसीवर ऑफ गुड्स, हमने तो उसी को रिटर्न किया है। एंड सेकेंड थिंग, रीजन फॉर क्रेडिटिंग, परचेज रिटर्न अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? बिकॉज वी हैव परचेज दिस गुड्स एंड वी आर सेंडिंग इट बैक, सो परचेज्ड गुड्स रिटर्न्ड। ओके, नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न बाय नीला ऑफ ₹1500। अभी देखो प्रीवियस एंट्री थी यहाँ पे, ये रही नंबर 9। नीला ने क्या किया, 1500 रुपए का गुड्स हमको वापस दिया। नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोल्ड द प्रोडक्ट एंड वी गेट इट बैक, सो इट्स अ सेल्स रिटर्न। हमने सेल किया था और हमें वापस मिला, तो इसे क्या कहा जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट। एंड किसने वापस भेजा है? तो नीला ने। नीला इट्स अ नेम ऑफ द पर्सन, सो नीला अकाउंट क्रेडिट, यहां पे आएगा डेबिट, बाकी में डैश आ जाएंगे। चलो, यहां पे रीजन क्या आएगा? गुड्स सोल्ड रिटर्न्ड। ओके, ये फर्स्ट रीजन। और रीजन फॉर क्रेडिटिंग नीला, गुड्स रिटर्न्ड बाय नीला, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट वन, पेड ₹500 फॉर कैरेज। नाउ कैरेज इट्स एन एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के लिए कौन सा अकाउंट आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। पेड द अमाउंट, पेड दैट मीन्स यू हैव पेड द अमाउंट इन कैश। तो पहले देखो, कैरेज एक्सपेंस, सेकेंड क्या आएगा? पेड दैट मीन्स पेड इन कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट, बाकी में क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा। चलो देखो, पेड ₹500 फॉर कैरेज, तो उसका रीजन डेबिट होने का क्या था? बिकॉज कैरेज इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एंड why cash? Because amount is paid in cash. That is the reason, that is the explanation. Next one, number 13, goods of ₹200 destroyed by fire. पहले तो देखो, goods का रिलेटेड एंट्री था। अब goods comes in और goes out, हमारा goods रिटर्न गया, मतलब 2000 का तो माल ही बिगड़ गया हमारा, तो बिजनेस में से उतना खत्म हो गया, कम हो गया, तो इससे कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? फर्स्ट वन
डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ, सो इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। तो लॉस और एक्सपेंसिस है तो यहां पे आ जाएंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये आपकी फर्स्ट एंट्री आ गई, पता चला। चलो तो यहाँ पे तो दोनों में से कहीं पे नहीं आएगी। नेक्स्ट कहाँ पे आएगी, ये रिलेटेड है विथ गुड्स, तो गुड्स वाला अकाउंट यही है, तो ये दोनों में डैश कर दो। अब जैसे कि अगर आपका गुड्स है और आपका ही गुड्स जो है फायर में चला गया, तो उसमें ना तो थोड़ी ना आप प्रॉफिट ऐड करके बेचने वाले थे, वो तो आप जब सेल करोगे तब प्रॉफिट ऐड करोगे। उसके पहले कौन सी वैल्यू आएगी, ओनली परचेज वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये तो माल आपके पास ही पड़ा था और क्या हो गया, फायर की वजह से बिगड़ गया। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे रीजन फॉर डेबिटिंग, लॉस इज एन एक्सपेंस एंड डन ड्यू टू फायर। फायर की वजह से लगा ना ये एक्सपेंस, दैट्स वाई। सेकेंड, नेक्स्ट एंट्री वाई गुड्स, सो गुड्स destroyed by fire, that's why purchase account is credited. Clear? Next, number 14, commission received rupees 5000. commission it's an income. okay, commission हमें मिला है 5000 का, इनकम है तो यहां पे आ जाएगा commission account फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट, तो ये तो दोनों में क्रेडिट की एंट्री नहीं आएगी। अब देखो कमीशन हमें मिला है तो ये आप क्या क्या हुआ, बिजनेस के अंदर गेन हुआ, तो ये तो यहाँ पे लिख दिया, पर अमाउंट आएगी वो किस में आएगी, कैश अकाउंट में आएगी, कैश में आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, और ये यहाँ पे डैश आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, और यहां पे क्या आ जाएगा, कमीशन इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, नंबर 18, 2000 rupees पेड फॉर द सैलरी। ओके, 2000 वी हैव पेड, salary is, it is written, so salary that means your routine expenditure, so salary account debit. Second thing, the amount is paid that means it is in cash, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cash account credit, यहाँ पे दोनों में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। फर्स्ट वन, salary is an expenditure and salary is paid in cash. So इस टाइप का कुछ आपको आज करना है। So I have discussed question number 4 where we have discussed almost 15 transaction, how we are going to make the entry. देखो मैं कितनी एफर्ट्स लगा रहा हूँ, आपको ये अच्छे से पता चले कि कहाँ की एंट्री कहाँ पे गई। सो दैट्स वाई आई हैव यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स। ओके, स्केच पेन अलग अलग यूज़ की है, इसकी वजह से ये अट्रैक्टिव भी लग रहा है, और सेकेंड थिंग आपको पूरा पता चलेगा। सेम वे अगर आप नोटबुक में बना रहे हो तो नोटबुक में ऐसे फुल स्केप ही ले लेना, यहाँ पे एक साइड और यहाँ पे दूसरी साइड, और मतलब एक स्टार्ट करो तो 9 नंबर पूरा 2 पेज में पूरे फुल स्केप में ख़त्म करना। सो इससे आपको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरीज प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर वी लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो इट विल गिव मी द आइडिया कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। एंड please subscribe to the channel, share it to the maximum people who are studying in standard 11th and 12th commerce.
I'm uploading the video for standard 11th and 12th commerce for the subject economics and accountancy. That's all for today. Thank you so much. Thank you so much for supporting and watching all my videos. Jai Hind.